Hello students, how are you? So far we have studied that how the East India Company, the British, tried to capture Indian territories or different states of India, different kings of India through different policy. So here I must tell you that the East India Company adopted or accepted three different ways to capture Indian territories. Number one, through different policies like subsidiary alliance, doctrine of lapse, I'll tell you today. And the second policy is through direct war, like Sindh and Punjab. And the third is through direct control, like Awadh. So, in different for different states, the company applied different policies to have complete control over India. So we saw how the East India Company succeeded to overthrow Tipu Sultan and capture Mysore. Today we will see how a big area, big state, which has been ruled by the Marathas. Marathas were the most powerful in those days. How the British succeeded to overthrow the Marathas. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. Late 18th century means after 1780. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. In those days, Delhi was being under the control of the Mughals. These Marathas, they wanted to capture Delhi, but they were not succeeded because in the Third Battle of Panipat, which was fought in 1761, the Marathas were defeated. That's why their dream to rule over Delhi or to capture Delhi was in vain. वो ख़त्म हो गया. वो जो एक इच्छा उनकी थी कि दिल्ली में जाके दिल्ली को कैप्चर करके पूरे दिल्ली को कंट्रोल करके दिल्ली के ऊपर राज करेंगे और पूरा इंडिया में राज करेंगे, ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई. They were divided into many states under different chiefs or sardars belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhonsle. These Marathas were divided into 4 dynasties or 4 groups. One group is Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhonsle. So they were divided into 4 groups and the leader was called the Sardars. The chief were held together in a confederacy under a Peshwa और प्रिंसिपल मिनिस्टर. ये चारों जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले, ये सब एकता में थे, एक जगह में बैठ के मीटिंग करते थे, राइट. एक जगह में इनका डिसीजन लिया जाता था, जिनको प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था या पेशवा कहा जाता था, मराठाओं का हेड, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे. इनका हेड ऑफिस कहाँ था और हेडक्वार्टर कहाँ था, या एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड ऑफिस था इन पुणे. Mahatji Scindia and Nana Fadnavis were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. Late 18th century का मतलब again 1780s के बाद 1790s, right? So Mahatji Scindia and Nana Fadnavis या Nana Fadnis, these were the 2 important characters who were taking part of the administration in those days. The Marathas were subdued in a series of wars. मराठा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपने कैप्चर में लेना चाहते थे और इनके साथ सीरीज ऑफ वॉर्स, पावर सबड्यूड मतलब पावर कंट्रोल में लेने के लिए इनके साथ बहुत सारा युद्ध हुआ था। द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, देयर वाज नो क्लियर विक्टर। जो ट्रीटी ऑफ सालबाई एक हुआ था पहला युद्ध के बाद, पहला एंग्लो मराठा वॉर के बाद इन 1782, इसमें कोई विक्टर नहीं था, लेकिन एक ट्रीटी बनाया गया था, एक संधि, एक चुक्ति बनाया गया था मराठा और ब्रिटिश के बीच में। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो एक साइड से अटैक नहीं हुआ था, अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि मराठा आप देखेंगे उस टाइम में उड़ीसा भी मराठा के अंडर में हुआ करता था, राइट। एमपी का कुछ हिस्सा हुआ करता था, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, राइट। सो अलग अलग हिस्सों से उनको अटैक किया गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटोरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। सो इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्योंकि अलग अलग हिस्सों से अटैक किया गया था, नॉर्थ से, ईस्ट से, तो ईस्ट में तो उनको उड़ीसा छोड़ना पड़ा, उड़ीसा ब्रिटिश कैप्चर में आ गया, और नॉर्थ में यमुना नदी के रिवर में आगरा और दिल्ली, ये भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिए। इवन इफ दिल्ली में उस टाइम आप देखें तो मुग़ल रूलर थे, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं थे, तो दिल्ली तक सिर्फ मुग़ल रूलर को छोड़ के वो सिर्फ नाम का सम्राट रहे, बट उनकी पूरी एरिया जो है वो ब्रिटिश कैप्चर में आ गया था। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. फाइनल बैटल में जो पेशवा थे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817 to 1819, वो पेशवा को हरा दिया गया और वो हार गए पेशवा, और उनको कानपुर के पास बिथुर एक जगह है, उनको वहाँ भेज दिया गया और उनको कुछ ईयरली पेंशन दे दिया गया ताकि वो मुँह ना खोले और उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाए। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। विंध्यांचल, विंध्या माउंटेन है जो एमपी में है, तो विंध्या के, एमपी और महाराष्ट्र में है, विंध्या के साउथ में जितना भी टेरिटरी रहा वो पूरा के पूरा जो मेनली मराठा कंट्रोल में था वो ब्रिटिश के हाथ लग गया। ब्रिटिश अब उनको कैप्चर कर लिया। अब देखिए इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी में बहुत चेंजेस आए, और ये तब आप देखेंगे अलग अलग गवर्नर जनरल्स आते थे, कोई 5 साल रहते थे गवर्नर जनरल, कोई 10 साल रहते थे, और ये अपने हिसाब से नए नए पॉलिसी लाते थे। उनमें से एक पॉलिसी आता क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब ये है जब आप सुप्रीम, किसी एरिया की सुप्रीम पावर बन जाए तब आपको पावर ऑफ पैरामाउंटसी कहा जाता है। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1813 to 1823, 10 ईयर्स ये थे। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वाज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब ब्रिटिश के पास क्योंकि ये लोग इतने एरिया कैप्चर कर लिए, अब इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अब सुप्रीम पावर है, हमारे पास पैरामाउंट पावर है, सुप्रीम पावर है। इसका मतलब है हम किसी भी इंडियन किंग से, इंडियन राजा से हम ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी इंडियन राजा हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। When the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. कितूर एक छोटा सा एरिया कर्नाटक में, लेकिन वहाँ पे राजा नहीं थे, वहाँ पे रानी थे जिनका नाम चन्नामा था। जब ब्रिटिश ने ये कितूर कैप्चर करने के लिए कोशिश किया तो चन्नामा ने रिवोल्ट किया, चन्नामा ने युद्ध किया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और जेल में डाल दिया गया, जहाँ पे उन्होंने 1829 में मर गए थे। बट
रायन्ना, ए पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कितूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। एक गरीब चौकीदार जो कितूर के रानी के अंडर में थे, और सांगोली करके एक एरिया है कितूर के पास, कितूर के अंडर में आता है, वहाँ का वो चौकीदार थे रायन्ना। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ रेजिस्टेंस कैरी किए, उनका विरोध करते रहे। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ ब्रिटिश के छावनी हुआ करता था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश के ऑफिस हुआ करते थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिस को और आर्मी कैंप को इन्होंने ख़त्म कर दिया, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को भी ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। अकेले कितने दिन तक चलाए गए वो, इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया इन 1830 और उनको फांसी दे दी। इन द लेट 1830s मतलब 1827, 28, 29, in that time. In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. देखिए, इनके रशिया का भी डर था। क्यों? It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उनको लगा उस टाइम तो लैंड रूट मतलब पहाड़ वगैरह क्रॉस करके आना था, इधर से हिमालय से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो उनको लग रहा था कि ये अफगानिस्तान होके ये इंडिया के अंदर प्रवेश करेंगे रशिया लोग और इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ ईस्ट। घबराते हुए कि कहीं रशिया कैप्चर करना ले, इन्होंने क्या किया ना, नॉर्थ वेस्ट जो आपके पाकिस्तान वाला एरिया है या कश्मीर वाला एरिया है, वो वाला एरिया, उस एरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुरक्षित करना चाहा। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। प्रोलॉन्ग्ड वार मतलब लंबा युद्ध, थोड़ा सा लंबा युद्ध जो 3-4 साल तक चला था। तो अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान क्रॉस करके वो लोग आएंगे, अगर आएंगे तो रशिया, इसलिए अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। वहाँ अफगानिस्तान के जो राजा थे उनको वहाँ राज करने दिए, लेकिन वो कंपनी के अंडर में रहे, यानी कंपनी के बिना सलाह, कंपनी को बिना पूछे वो किसी के साथ किसी को आने भी नहीं देंगे या किसी के साथ कोई संधि भी नहीं करेंगे। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। इस तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के बाद 1843 में सिंध जो पाकिस्तान में है उसको भी कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। उसके बाद पंजाब की बारी आई, बट द प्रेजेंस महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन उस टाइम में जो महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे पंजाब के राजा, उन्होंने सिख राजा, उन्होंने ब्रिटिश को ऐसा करने नहीं दिया। पर आफ्टर हिज डेथ इन 1839 2 प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो गया, फिर ब्रिटिश ने उनके साथ 2 युद्ध किया और अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड। तो 1849 में फाइनली सिखों ने बैटल हार गए, युद्ध हार गए और पंजाब उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। अब देखिए, पहले हम देखे थे पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस, फिर देखे डायरेक्ट युद्ध करके सिंध और पंजाब को मिला लिया गया। अब एक नया पॉलिसी है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब खत्म हो जाना, हाँ, कोई पावर खत्म हो जाना, कोई पॉलिसी खत्म हो जाना। अब ये क्या है देखते हैं। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी जो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 तक, उन्होंने एक नया पॉलिसी बनाया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। क्या कहते हैं? ही डिवाइज्ड पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ये रूल था, अगर किसी इंडिया के राजा मर जाएं और उनका कोई बेटा नहीं हो,
बेटी होने से कुछ नहीं होता, उनका कोई बेटा नहीं हो तो उनके जो किंगडम है वो लैप्स कर जाएगा, यानी उनके पास और नहीं रहेगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। और कोई कोई केस में भी ये देखा गया कि जिन राजाओं ने एडॉप्टेड सन किए थे, क्योंकि उन जमाने में ऐसे माना जाता था कि सन होगा, बेटा होगा तो बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो कोई कोई राजा जिन्होंने एडॉप्ट किए थे, किसी सन को एडॉप्ट किए थे, किसी बेटा को एडॉप्ट किए थे ताकि वो मरने के बाद वो बेटा एडॉप्टेड बेटा राजा बने, उसको भी ब्रिटिश ने नहीं माना। और देखिए कैसे कैसे बहुत सारे हिस्से जो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर आके ब्रिटिश के अधिकार में आ गए थे, क्योंकि उनके पास कोई मेल हेयर, लीगल मेल हेयर नहीं थे। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। सतारा इन 1848, संबलपुर इन 1850, उदयपुर इन 1852, नागपुर इन 1853 एंड झांसी इन 1854, जिसमें आप लोगों ने सबने कहानी पढ़े हैं। झांसी की रानी ने बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी ब्रिटिश के साथ कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन उनका भी डेथ हो गया था और उनको मार दिया गया था। और 1854 में झांसी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत ब्रिटिश कैप्चर में आ गया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ साथ ये सब सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी आ गए थे, लेकिन एक बड़ा एरिया जो बचा था उस टाइम इन 1856 में, उसको भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिए, जिसको आज हम जानते हैं अयोध्या के नाम या अवध। और अवध को किस तरह लिया गया? देखो, अवध को किसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडियरी अलायंस या डायरेक्ट युद्ध करके नहीं लिया गया था। अवध के लिए ब्रिटिश ने एक अलग पॉलिसी बनाया अपनी मर्जी से। This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. उन्होंने कहा कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसगवर्नमेंट हो रहा है, वहाँ के जो नवाब है वो ठीक से लोगों को शासन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारा ड्यूटी बनता है, वी आर obliged by duty, हमारा ड्यूटी ये बनता है कि अयोध्या को या अवध को ब्रिटिश कंट्रोल में लिया जाए और वहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। देखो भाई, जिसके हाथ पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ब्रिटिश के हाथ तब तो पावर हो गया था, वो पूरी इंडिया को अपना कैप्चर में लिए थे। उनको पता था कि हम ऐसे भी करेंगे, कुछ भी करके अपनी मर्जी से अयोध्या को कैप्चर कर ले तो अयोध्या के जो नवाब है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अपनी मर्जी से एक आर्गूमेंट दिया कि वी आर obliged बाय ड्यूटी, यहाँ मिसगवर्नमेंट हो रहा है, लोगों को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए अवध को कैप्चर करते हैं। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. डायरेक्ट तो कैप्चर में ले लिए, लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि हमारे नवाब को ऐसे ह्यूमिलिएट करके अवध को ले लिया गया। इसलिए जब 1857 में सिपाही म्यूटिनी या ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी का, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। जब सिपाही विद्रोह हुआ था इन 1857 में, तब ये जो गुस्से में लोग थे बिकॉज ऑफ दिस एनेक्सेशन ऑफ अवध, दे पीपल और दीज पीपल जॉइंड द 1857 रिवोल्ट विद द सिपाहीज। ओके, फॉर टुडे दिस मच, विल सी in our next class.